that it gives me immense pleasure to announce to all of you that the only faculty, one and only faculty, that is Faculty of Education in itself, has already completed 11 web lecture, 2 webinars, and 1 web concert. Forget about KCC as a whole. So we really thank our principal for charging us so well for doing these type of work in the time of pandemic. Well, today's lecture will be very enlightening and very, very important for the situation that we are in. And challenges are all around. The biggest challenge is itself COVID-19. And how to come up, what are the theories, what are the methodologies to come up with this particular pandemic is absolutely paramount crisis for us as educators at this particular juncture. But today's lecture, which will be unveiled very soon, will try to address to those methodologies which will definitely going to address to the crisis of this particular time in the best possible manner. So, to begin the program, to begin this web lecture, I must first invite our loving principal with this particular couplet to come and welcome our guest. Sir, आपके लिए लाइन है कि तेरे आने की जब खबर मैं के, तेरे आने की जब खबर मैं के, तेरी खुशबू से सारा घर मैं के. Come in, sir. The whole dais is all yours. Come and welcome our guest. Thank you, Shivanu. Good afternoon, everybody present here today. Honorable Speaker, Professor Sheila Mishra, Dr. Suchita Bhuiya, Professor Samiullah, Professor Sivanur Rahman and Ritu Raj, all faculty members, and my dear students. I am proud and welcome among us Professor Sheila Mishra. She is a scholar of international repute and loved all over the world. Her presence today amongst us is a matter of immense pride, not only for the Faculty of Education, but also for Karim City College, Jamshedpur, and for Jharkhand as a whole. Her sharing of knowledge and wisdom with our student is highly fortunate on our part and shall help to inspire them a lot in their journey as a scholar. Today's topic is COVID-19, challenges and methodology for education. This is crucial time for education sector. The pandemic has significantly disrupted the higher education sector. One immediate measures are essential to ensure continuity of learning, which is e-initiative. On this burning topic, our expert will interact with our students and teachers and keep the fire of learning ignited in their heart. I also take this opportunity to congratulate Department of Education, particularly Dr. Suchita Bhuiya, Head, Dr. Samiullah, Dr. Sivanur Rahman and Ritu Raj for organizing this program and bringing the word of such an admirable academics to us. I thanks to all faculty members for always raising the word moral support of their colleagues. I extend my best wishes to the departments, its faculty members, its students for dynamic learning session ahead. Thank you very much to all. Hello? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for welcoming in the best possible way to our guest, Sheila Mishra ma'am. She is, of course, an eminent personality, and Karim City College definitely takes immense pride to hold her lecture, which is definitely going to be fruitful for the academicians of KCC and the students who are going to become a future academician, future teacher
in their future teacher very soon. So now I would like to invite our a person who's full of life within himself, a man of jokes, but a man of seriousness. Yes, I would like to invite Professor, or rather Doctor, I must say, Dr. Samiullah sir, who has just completed his PhD, and I would like to invite him to introduce us to Dr. Sheila Mishra ma'am, who was also being her PhD not supervisor, rather he hold his viva during his PhD viva. She was one of the very important member of Samira sir's viva. So I would like to call Samira sir, please come and introduce the immense personality of the immense esteemed personality of Dr. Sheila Mishra ma'am. Samira sir, please come and introduce to us. Dr. Suchita Bhunia Madam, Head Faculty of Education, Karim City College. All the faculty member of B.Ed and D.El.Ed and my loving students. आज के इस वेब लेक्चर में जिस टॉपिक पर चर्चा होनी है वो टॉपिक है चैलेंजेस एंड मेथडोलॉजीज फॉर एजुकेटर्स ड्यूरिंग कोविड-19। इस टॉपिक पर अपना विचार देने के लिए जो गेस्ट हम लोगों के बीच आई हुई हैं उनका परिचय कराने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि वो मेरी परम आदरणीय हैं। यह इसलिए कि वह हमारा पीएचडी का वाइवा लेने के लिए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा आई थी। उनसे मिलकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनका व्यवहार, उनका विचार काफ़ी आकर्षित करने वाला रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईश्वर जब किसी को महान बनाता है तो वह लक्षण उनके अंदर झलकता है। मिलने से पहले मैं बहुत भयभीत था, मिलने के उपरांत ठीक उसके विपरीत हुआ। चंद लम्हों की मुलाकात में मुझे अपनापन का बेहद एहसास हुआ जिसे मैं जीवन भर भुला नहीं सकता। सर्वगुण संपन्न ऐसी है मेरी डॉक्टर शीला मिश्रा मैडम। आइए हम लोग मैडम के एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में जान लें। करेंटली प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फॉर्मर coordinator of biostatistics in University of Lucknow, Uttar Pradesh. Also rendered her responsibility as head of the Department of Statistics, having more than 30 years of versatile academic experience with expertise in survey sampling, gender statistics, medical statistics, and is an elected member of most reputed International Statistical Institute of Netherlands. She has represented India in UNO on monitoring of Sustainable Development Goal 2013 in Bangkok and delivered many keynotes, speeches and invited talks in different parts of India, USA, Canada, Portugal, Nepal, Sri Lanka, Thailand on various topics of statistics, gender issues, leadership, personality development, yoga and naturopathy and spirituality. She is member of many prestigious national and international academic and social bodies, editorial boards, recruitment boards, and has contributed significantly through valued research papers, reviews, articles,
study materials, book chapters, and supervised many dissertation and PhD theses. She was co-faculty in charge for Saksham HIV/AIDS counseling program sponsored by Global Fund to fight AIDS, TB and मलेरिया। मैडम, आपसे अनुरोध है कि आज के परिवेश में अपने अनुभव को हम लोगों के साथ शेयर करें। नाउ ओवर टू यू मैम। मैम प्लीज कम। सभी को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सैमुअल्ला। सबसे पहले तो हम आपको देख करके इतने दिनों के बाद बहुत खुशी हुई। इस प्रेस्टिजियस करीम सिटी कॉलेज झारखंड के प्रिंसिपल सर डॉक्टर रियाज सर, यहाँ की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट की डॉक्टर सुचेता जी, और कार्यक्रम को एंकर कर रहे डॉक्टर रहमान जी, डॉक्टर सैमुअल्ला जी, सभी फैकल्टीज, कलीग्स, टीचर्स, delegates, participants and students. I'm really delighted to be with all of you today to share my few thoughts upon how the COVID-19 has impacted the education system as a whole, and how we all as teachers, as students, as parents, guardians, caregivers, society, administrators, managers have been impacted by this COVID-19. पर अगर आप लोगों की अनुमति हो तो बीच बीच में हम हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करना चाहेंगे। अगर इसमें कोई ऐसा हो जो हिंदी बिल्कुल नहीं समझ सकता तो प्लीज आप दोनों लैंग्वेज यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, चैट बॉक्स में अगर लिख देंगे, ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती है, तो जो कुछ भी हम हिंदी में बोलेंगे उसको हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भावों को स्पष्ट करना जो मातृभाषा में जितना आसान होता है उतना आसान किसी भी दूसरी भाषा में नहीं होता। और बिल्कुल सही मैम, बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग सभी एजुकेटर्स हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कल के होने वाले एजुकेटर्स हैं, कल के टीचर्स हैं। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर या तो खुद टीचर आज की तारीख में है या टीचर बनने वाले हैं। तो इसमें लगता है कि एक ऐसी फ्रेटर्निटी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो हमारे बहुत नजदीक के हैं, बहुत आत्मीय संबंध के लोग हैं, और उन लोगों के बीच में जब बात कहनी होती है या करनी होती है तो अपनी भाषा का अपना अलग ही आनंद होता है। तो आप लोगों की अनुमति से हम इसको ज्यादातर कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में रखें, और जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी या लोगों की आवश्यकता होगी उसको हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते चलेंगे। तो जिस समय डॉक्टर सैमुअल्ला ने हमसे कनेक्ट किया था इस टॉक के लिए, तो शुरू में तो मुझे थोड़ी सी दुविधा हुई कि ऐसे लोगों को हम क्या समझाएंगे जो खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, जो टीचर्स के टीचर्स हैं, उन टीचर्स को एक स्टैटिस्टिशियन क्या सिखा पाएगा। ये मेरे लिए स्वयं बहुत दुविधा की बात थी। लेकिन फिर हिम्मत इसलिए बढ़ी कि जब डॉक्टर सुचेता जी ने संपर्क किया तो मुझे लगा कि नहीं, हम एक टीचर के रूप में जिन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स हमसे रेगुलरली शेयर कर रहे हैं, और जो हमारे बच्चे हैं उनके गार्जियन के रूप में जो हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सबको अगर मिला जुला करके कोई बात कही जाएगी और कोविड-19 में हमारी अपनी क्या फीलिंग है, क्या फीडबैक है, क्या सजेशंस है, अगर उस पे हम इंटरेक्ट करेंगे तो हम दोनों ही लर्न करेंगे। तो यहाँ पर ये सोच करके हम आप लोगों के साथ हैं कि जितना आप हमसे सीखेंगे उससे कहीं ज्यादा हम आपसे सीखने वाले हैं, क्योंकि आप जो प्रश्न पूछेंगे या आप जो फीडबैक या चैट बॉक्स में हमारी बातों पर अपना रिस्पांस देंगे, उस रिस्पांस से हमारी भी एक लर्निंग होगी और हम भी सीखेंगे। और हमारे जो अपने अनुभव हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, जो आज की सिचुएशन है,
उसके बारे में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो वो आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो इसी के साथ हम अपनी बात शुरू करना चाहेंगे। शुरुआत में कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने रखेंगे, कुछ जो स्ट्रैटेजीज पॉसिबल है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर ये ओपन फोरम होगा। आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, और जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे वो उन प्रश्नों को देखते रहेंगे और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको लेंगे। तो इस प्रकार की हमारी योजना है कि हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ फैक्ट्स हम आपको जो दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ स्लाइड्स में प्रेजेंटेशंस करेंगे। वो प्रेजेंटेशन अभी हमारा जब आपका ओके हो जाए तो प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि कई बार थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। आ गया मैम, आ गया? ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 अपने आप में एक बड़ा प्रोमिनेंट टर्म हो गया है, और बाकी चैलेंजेस एंड मेथोडोलॉजीज फॉर एजुकेटर्स उसके बाद में आ रही हैं। तो कोविड-19 ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक नए तरीके से देखना पड़ रहा है? तो एक चीज तो हम सब लोगों को लग रही है कि कोविड-19 ने हमारी पूरी लाइफ स्टाइल को बदल करके रख दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका इन्फेक्शन का तरीका है, जो ट्रांसमिशन का तरीका है, वो भी इतना डेंजरस है कि जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं या बात करते हैं तो आपको डर लगा रहता है कि कहीं ये असुरक्षित तो नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जो एजुकेशन है, जिसका काम ही है कि डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ही बेस्ट पॉसिबल वे में कम्युनिकेट की जा सकती है, वो कैसे की जाए और किस तरह से उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसको हम देखते हैं। 4 C's है हमारे लर्न करने के लिए किसी भी सिचुएशन के बारे में, जिसको हम कहते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस हो और कंसर्न हो, उसके बाद कमिटमेंट हो और फिर कॉम्पिटेंसीज हो। कॉन्शियसनेस माने क्या कि हमारे आसपास जो घट रहा है, यानी कोविड-19 ने हमारे आसपास के एजुकेशन सिस्टम को किस प्रकार से प्रभावित किया है और कर रहा है, इसके बारे में हम कॉन्शियस हो। दूसरी बात है कि क्या हम कंसर्न है, यानी क्या हमें चिंता हो रही है कि इस कोविड-19 के सिस्टम में कैसे हम अपनी एजुकेशन को बेस्ट पॉसिबल वे में कंडक्ट कर पाएंगे। तो बिल्कुल हम लोग चिंतित भी हैं, क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने आज की इस वेबिनार का आयोजन किया है, एक दूसरे से सीखने के लिए। और तीसरा कि क्या हमारा कमिटमेंट है। कमिटमेंट का अर्थ ये हुआ कि क्या सचमुच हम एजुकेशन को अनइंटरप्टेड कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर हम कुछ बहाने बना करके या सिचुएशन का रोना रो करके या हथियार डाल करके, या फिर कह सकते हैं कि अपने को कमजोर मानते हुए वायरस के सामने क्या बिल्कुल छोड़ देंगे एजुकेशन को। क्या कमिटमेंट हमारा कम है? तो नहीं, हमारा कमिटमेंट भी है कि हम इसको आगे जारी रखेंगे जहां तक संभव होगा बेस्ट तरीके से। उसके बाद अगला प्रश्न ये आता है कि क्या हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं। हम सभी देख रहे हैं कि हम सबको ब्लैक बोर्ड, चौक, इन सबकी आदत अपनी स्टूडेंट लाइफ से लेकर के अपने पूरे टीचिंग करियर में पड़ी रही है। फिर कुछ ऐसी मेथोडोलॉजीज हम लोग यूज करते रहे हैं, आप चाहे उसको ऑडियो विजुअल कहें, चाहे आप पोस्टर्स कह लें, चाहे एक्टिविटीज कह लें, या सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, या फील्ड विजिट्स के माध्यम से, स्कूल कॉलेजेस में जाकर के एक प्रैक्टिकल टीचिंग और लर्निंग के माध्यम से। परंतु ऑनलाइन के माध्यम में विशेष करके हम लोग जो इंडियन स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, वो इतने हैबिचुअल नहीं थे मेन कोर्स एजुकेशन को सीखने के लिए। हालांकि एड ऑन कोर्सेज के लिए हम लोगों में पहले भी इस तरह के ऑनलाइन मेथोडोलॉजी को यूज किया है, परंतु कोविड की वजह से ये पूरी तरह से हमारा बेस बन के रह गया है। तो हमें ये देखना है कि कोरोना ने कैसे हमारे सभी स्टेक होल्डर्स को, स्टूडेंट्स,
teachers, supporting staff, administrators of institutions, guardians, parents, society, इन सबको इंक्लूडिंग द जेंडर इश्यूज किस तरह से इम्पैक्ट किया है। तो हम लोग वन बाय वन इन सभी के रेफरेंस में एजुकेशन सिस्टम को देखने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे अनलॉक 2 शुरू हुआ तो सबसे पहली हेडलाइन यही थी कि स्कूल कॉलेजेस सब कम से कम 31 जुलाई तक बंद रहेंगे और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कैसी सिचुएशन बनती है और उसके अकॉर्डिंग हमारे गाइडलाइंस चेंज होते रहते हैं, रिव्यू होते रहते हैं। इस दौरान ये भी देखा गया कि बहुत सारे इंटरटेनमेंट के साधन जैसे सिनेमा है या जिम्नेजियम्स है, पूल्स है, ट्रेवलिंग है, पार्क्स है, थिएटर्स है, ऑडिटोरियम्स है, सोशल गैदरिंग्स है, सभी बंद है। हम जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इन सभी चीजों से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है और हमारे टीचर्स भी इन सभी चीजों के साथ बहुत क्लोज इंटरेक्शन रखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या चीजें बदल रही हैं हमारे साथ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम आया है इसके बारे में प्रेडिक्शन है कि ये रिमोट लर्निंग का जो पूरा का पूरा इंडस्ट्री है it is going to be almost $2 billion by 2021. That means it may not replace the personal classroom teaching, but it will be having a major share into education system. So this we can see that we all were already using it, and we see that at least 1.6 million users were there who were learning through online. And there have been people who have been seeing the educational content on YouTube, and 44% of that share was from the 6 metros in India. So this is the situation that we are going to have remote learning as a major source or methodology of learning. But then again, the problem is that how many percentage or proportion of our students and teachers they are having access to the technology, to the internet facilities, especially the students who are staying in the remote villages, the rural areas. So they might not be having good connectivity even if they are having the smartphones or laptops. So that is going to be a major drawback. And we have heard that a child from the Tamil Nadu state, she committed suicide. She was only in class 10th and she was not able to attend her online classes. So that is how it is. One group you can say that they are having all the facilities and accessibilities to the latest technology and methodology, and the other group who don't have access to the technology, or they are not from that particular section of the society who are so well that they can afford this kind of technological setup. And maybe sometimes even if you have a smartphone, you may not have space in your home or separate rooms for each children so that they can silently do their online classes. Because if the different chores of the home, they are going on, somebody is talking and moving around, and there are many people sharing the small space of the home. In that situation, it is really very, very difficult to continue with the online education system if we want to continue it for a long time. So it means that, yes, it will be a very important mode of communication of education, but it will not replace our personal teaching or personal classroom contact for educating our students. So how it is going to be done? So we see that UNESCO report is there that it has impacted 91% of the world student population. And if we talk about India, it has impacted at least 32 crore students.
So these students are from schools and from college, all level colleges. So how are we going to cope up with this? So the thing is that first thing we have to learn that information and learning must not stop. So how it can continue? The first thing is that we need to tell our students what is COVID-19, how it has impacted us, and what can be done so that we are least affected by this. So first thing is that the children and young population, as a global citizen, they are the powerful agents of change and the next generation of caregivers, scientists, doctors. So any crisis, this is presenting an opportunity to help them learn, cultivate compassion, and increase resilience while building safer and more caring community. जहां पर हम कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चों और टीचर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है इसको लर्न करना। हमने देखा कि चाइना के एक छोटे से शहर वुहान में एक छोटा सा वायरस जो माइक्रोस्कोप से भी दिखता नहीं है, बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, उसने 2-3 महीने के अंदर पूरे विश्व के 200 से अधिक देशों के गांवों तक अपना प्रचार प्रसार फैला दिया। इसका मतलब है कि विश्व में कहीं भी कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट हर एक व्यक्ति पर पड़ता है, चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, गरीब हो, अमीर हो, अमेरिका जैसे बहुत डेवलप्ड कंट्री में रह रहा हो, या फिर किसी अफगानिस्तान या इराक जैसे किसी ऐसी जगह पे जहां पे सुविधाओं की बहुत कमी है। तो इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि पूरे विश्व की खुशी में ही सबकी खुशी है। अगर पूरा विश्व हेल्दी होगा तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज समझने की भी अपॉर्चुनिटी है, जो हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगी तो वो एक हमारे एडवोकेट बन जाएंगे, ह्यूमैनिटी के प्रोपोगेटर के, कंपैशनेट बन करके आगे समाज में इस मैसेज को, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट वे। उसके बाद जो कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे मिथ, अफवाह, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस आती हैं जो सच नहीं होती हैं, तो उन इंफॉर्मेशन के बारे में आप उनको सच बताएं, जिससे स्टूडेंट्स का जो डर है, जो एंजाइटी है, जो उनके अंदर इम्यूनिटी को रिड्यूस करती है, वो खत्म हो, वो डर, और वो एक बेहतर तरीके से इस सिचुएशन का सामना कर पाए। तो सही इंफॉर्मेशन हमारे सभी लोगों के पास होनी चाहिए, हमारे टीचर्स के पास, हमारे स्टाफ के पास, पेरेंट्स के पास, स्टूडेंट्स के पास, जिससे वो कोविड-19 को समझ सके, उसके सिम्टम्स को जान सके, उसके ट्रांसमिशन को रोक सके और उससे बेहतर तरीके से डील कर सके। तो ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सिचुएशन को हम पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने की अपॉर्चुनिटी और स्टूडेंट एम्बेसडर बनाने की अपॉर्चुनिटी के रूप में भी इस्तेमाल करें। इसके बाद हेल्दी स्कूल्स को हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हमें देखने होंगे कि सिक स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो या कोई अदर स्टाफ मेंबर हो, वो सिकनेस की कंडीशन में स्कूल बिल्कुल ना आए, और स्कूल्स को इन्फोर्स करना पड़ेगा कि जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे हैंड वॉशिंग है, सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सब का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। इसमें ये भी हम देखते हैं कि एक प्रोटोकॉल या प्रोसीजर या प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी होनी चाहिए, जैसे प्रिंसिपल के लेवल पर या मैनेजर के लेवल पर, कि वो पूरा का पूरा प्रोसीजर बनाए कि सिक प्लान या अनवेल प्लान में किस तरीके से वो सिक लीव अपने स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ को देंगे। इसके साथ साथ वो कैसे लोकल हेल्थ कोऑर्डिनेटर्स या अथॉरिटीज के संग कांटेक्ट में रहेंगे, जिससे वो अपने यहाँ के स्टूडेंट्स, स्टाफ और टीचर्स की हेल्थ रिपोर्ट बिना किसी देरी के उनको देते रहें। तो जो सही वहां से एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो कोविड को कंटेन करने के लिए इमीडिएट स्टेप्स उठा सकेंगे।
उसके बाद है कि प्रोसीजर फॉर सेपरेटिंग सिक स्टूडेंट्स एंड स्टाफ फ्रॉम दोज हु आर वेल विदाउट क्रिएटिंग स्टिग्मा। यानी एक स्टिग्मा क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट, टीचर या स्टाफ को कभी उसके फैमिली में या उसको पॉजिटिव केस वो निकल के आता है, तो उसके बारे में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, स्टिग्मा ना हो कि अब उससे बात ना करें, उसके साथ ना बैठें, उसके संग दोबारा ठीक होके जब वापस आए तो कमेंट्स करें, बुलिंग करें। तो ये स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन और किसी के भी प्रति दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए भी प्रोसीजर और गाइडलाइंस होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो सिचुएशन जैसी हो उसके हिसाब से आप जो स्टूडेंट है या टीचर है उसको इमीडिएटली घर पर भेज सकें और उनके केयर गिवर से बात कर सकें। इसके लिए भी कोई ना कोई आपके पास मेथड होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए। यानी you have to coordinate with the national health and education authorities. You should share known information with all the caregivers, staff and students, and you have to update them about the latest information. जैसे अभी 2-3 दिन पहले आया कि पहले तो ये हुआ कि नहीं, ये कफ और स्नीज से ही फैलता है। अभी ये पता लगने लगा कि वो एयरबॉर्न भी है, यानी हवा में भी उसके विषाणु थोड़ी देर तक रहते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई नहीं भी है तो भी आप मास्क पहन के रहें, यानी अपनी इंफॉर्मेशन को लगातार अपडेट करते रहें ऑथेंटिक सोर्सेज से, और अपने स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ सभी को लगातार इसके बारे में बताते भी रहें। वो मैकेनिज्म आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद है कि अगर घर पे किसी के कोई बीमार बच्चा है तो बच्चे से बातचीत करके आप ये भी जानते रहें कि कहीं वो ऐसी फैमिली से तो नहीं आ रहा है जिसके यहाँ पे कोई पॉजिटिव केस है। और हेल्थ अथॉरिटीज के भी कांटेक्ट में रहें कि जो भी पॉजिटिव केसेस आते हैं, जिस जिस जगह पर उस घर के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूल के अथॉरिटीज को भी वो सूचना दें, जिससे कि आप सही समय पे उसको आइसोलेट कर सकें या होम क्वारंटाइन के लिए आप आगे स्टेप्स ले सकें। इसके साथ साथ जो पेरेंट और टीचर की कमिटीज है उसको भी आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा, जिससे किसी के भी घर के जो हालचाल हैं वो लगातार आपको मिलते रहें और आप कोविड-19 को कंटेन करने में हेल्प कर सके। जो बच्चों के क्वेश्चंस और उनकी जो चिंताएं हैं उनको साझा करने के लिए भी आप नियमित कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाइए। बच्चों को कई बार एंजाइटी डेवलप होती है, स्क्रीन टाइम बहुत होने की वजह से वो भूलने लग जाते हैं। कई बार उनको लगता है मेमोरी लॉस होने लगता है, डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है, कई बार उनके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है, इरिटेशन डेवलप होता है, या घर के अंदर एक ही 2 लैपटॉप हैं, घर में 1-2 बच्चे ज्यादा हैं, या पेरेंट्स को भी यूज करना है, ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उन सब बच्चों की जो चिंताएं हैं उनको भी आप जानें और उनसे बात करें, उनके घर वालों से संपर्क में रहें और उसको हमेशा वॉच करते रहें। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि फ्लेक्सिबल अटेंडेंस का भी कुछ प्रोसीजर होना चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी बीमार है तो आप उसे ऑनलाइन ई मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करा दें, कुछ यूट्यूब पे क्लासेस उनको रेफर कर दें, कुछ होमवर्क असाइनमेंट्स दे दें, तो वो फिर अपनी कंटिन्यूटी भी मेंटेन रखेंगे और दूसरों के लिए भी खतरा नहीं बनेंगे। इसके बाद ये है कि स्कूल की जो अटेंडेंस है मॉनिटर करने का, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल घर में आप जब ऑनलाइन बैठ के बच्चे से क्लास करवा रहे हैं उस समय वो एंटर कर देता है, लॉग इन कर देता है, पर उस समय भी वो ध्यान नहीं देता या पूरे टाइम बैठता नहीं है। तो ये सब चीजों के लिए आपको मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि स्कूल की भी अटेंडेंस मॉनिटर करें और जब घर पे रहता है उस समय भी वो क्या कर रहे हैं बच्चे, उस पर भी ध्यान दें। लोकल अथॉरिटीज को इमीडिएटली अलर्ट करें अगर आपके यहाँ का कोई बच्चा, टीचर या कोई भी स्टाफ सिक है। उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग, इसके लिए प्लान बनाएं कि आप सपोर्ट सिस्टम रखें। कुछ टीचर्स को आप फॉलो अप टीचर्स की तरह से, मेंटर्स की तरह से असाइन कर सकते हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए, जिससे वो टीचर उन बच्चों को पर्सनल लेवल पे फॉलो अप कर सके, उनको मेंटर कर सके, उनकी कंसर्न्स को दूर कर सके। और ये भी हमेशा देखें कि अगर आपके यहाँ पर
अलग अलग एथनिसिटी के स्टूडेंट्स हैं, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी जरूरतों को भी आप ध्यान में रखते हुए अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को अपडेट करें। मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस समय लगातार देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स की तो छोड़िए, अभी लेटेस्ट हमारे उत्तर प्रदेश में एक आईआईटी कानपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर ने, वेरी यंग प्रोफेसर, 35 इयर्स ऑफ एज, एंड ही कमिटेड सुसाइड। सो कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत तरीके के प्रेशर्स लोग झेल रहे हैं अपने रूटीन प्रेशर के साथ में, तो वो लगातार इसके बारे में किसी ना किसी से बात कर पाए, कोई ना कोई उनको सपोर्ट कर पाए, वो आइसोलेशन में ना चले जाएं और एक्स्ट्रा प्रेशर किसी भी तरह से ऐसे समय पे ना क्रिएट होने पाए। देखिए, कोविड-19 तो चला जाएगा, वायरस है, आज नहीं तो साल भर बाद, 2 साल बाद कभी ना कभी इसको जाना ही है। लेकिन अगर मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और ये जो ट्रॉमा डेवलप हो गया, माइंडसेट में प्रॉब्लम आ गई, तो ये बहुत लंबा चलने वाला है। तो चाहे हमारे टीचर्स हों, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे पेरेंट्स और दूसरे लोग हों, हम कोशिश करें कि किसी के मेंटल हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट ना आने पाए। Mental health is most important right now, and all of us need to be special sensitive towards providing psychosocial support to each and everyone who needs it. Mind it, education sector में बहुत सारी women professionals हैं, girls students हैं। आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आता है किसी भी डिजास्टर का और कोविड-19 को लेकर के विमेन पे आता है। जितना वो काम पहले करते थे उससे 3 गुना ज्यादा अनपेड केयर जो वो घर में करते रहते थे वो उनका बढ़ गया है। अब आप समझिए, अगर वो एजुकेटर भी हैं, टीचर भी हैं या स्टूडेंट हैं, घर में तो नियमित जो बैलेंस उनका काम था वो था ही। अब ये जो एक्स्ट्रा वर्कलोड बढ़ा है, चाहे वो डोमेस्टिक हेल्प की एब्सेंस में हो या फिर बहुत सारे लोगों के लगातार घर में रहने की वजह से हो, चाहे सिक या एल्डरली पीपल को केयर देने की वजह से हो, चाहे बच्चों के 24 घंटे सामने होने से और उनकी जरूरतों को पूरा करने से हो, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जिसमें से एक बड़ा भाग है लड़कियों का और महिलाओं का। तो अगर गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर भी घर में भी काम करने का प्रेशर बढ़ा है। ऐसे में आपको अपनी गर्ल स्टूडेंट्स के बारे में ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा। आपके जो लेडी टीचर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत काम बढ़ा है और आखिर वो इसी सोसाइटी के जो सिटीजन्स हैं उन्हीं की केयर कर रही हैं। अगर वो घर में अपने बच्चों को हेल्दी रख रही हैं, फैमिली को हेल्दी रख रही हैं, तो वो गवर्नमेंट का बर्डन कम कर रही हैं। और इसके साथ साथ 70% जो हेल्थ केयर गिवर्स हैं वो भी वुमेन हैं। तो वो वुमेन किसी ना किसी की मदर है, कोई ना कोई उनका बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है। तो अगर वो इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं पेरेंट्स और उनका बच्चा स्टूडेंट है, तो उस बच्चे को भी एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीजों को घर पे अकेले हैंडल कर रहा होगा, क्योंकि उसकी मदर अगर डॉक्टर है या फादर भी डॉक्टर है, ऐसे में दोनों इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो वो किस प्रकार से अपनी एजुकेशन से कोप अप करेगा, इसके बारे में टीचर्स को एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत है। और वल्नरेबल पॉपुलेशंस भी होती हैं। वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे आपने देखा कि अगर किसी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लोग हैं या किसी तरह से डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं या किसी और ऐसी सोसाइटी के लोग हैं जहां पे उनकी एक्सेस हर चीज के लिए नहीं उतनी अच्छी है, तो इन सभी लोगों के साथ एक स्पेशल प्लान की जरूरत है एजुकेशन की, और वो हम सब लोगों को देखना होगा। तो अगर हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करें कि हमारी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर्स एंड स्टाफ, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अगर स्कूल हमारे ओपन होते हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि तीनों ही जो इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं, एक तो मास्किंग का हाई है, उसके साथ साथ रेगुलर हैंड वॉशिंग है, सैनिटाइजेशन है, विशेष करके टॉयलेट्स में, क्योंकि एक ही टॉयलेट को अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं
कि नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स इंडिया में ज्यादा है, 80% लोगों में लक्षण नहीं आते। तो अगर किसी बच्चे का टेस्ट नहीं हुआ है, अगर किसी टीचर या स्टाफ का टेस्ट नहीं हुआ है, उसमें लक्षण नहीं है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को रेगुलरली सारे प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ही सीरियसली फॉलो करने होंगे, क्योंकि आज ही एक रिपोर्ट आई थी कि नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत तेजी से कोरोना के स्प्रेड को बढ़ा रहे हैं। तो अगर कोरोना का स्प्रेड हो रहा है, हमें अगर सिम्टम नहीं है, हमें लग रहा है कि हम ठीक हैं, पर अगर दूसरा व्यक्ति एल्डरली है, क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट है, चाइल्ड है, वीक है, लो इम्यूनिटी है, उसको अगर हमसे हो गया तो वो उस चीज से बीमार पड़ जाएगा, उसके लिए वो फैटल हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे आपके सिम्टम हो चाहे ना हो, जब तक पूरी तरह से सरकार के द्वारा, WHO के द्वारा, सभी ऑथेंटिक जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा डिक्लेयर ना किया जाए, तब तक आप रिलीजियसली सारे ही प्रिवेंटिव मेजर्स को अपने इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करते रहिए, ये आपको ध्यान देना है। और हर क्लासरूम के बाहर, हर टॉयलेट के बाहर, लंच जहां पे करते हैं बच्चे वहां पर, फील्ड में जहां पे वो बैठ के खाना वाना खाते हैं वहां पे, सभी जगह पे आप ध्यान रखें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर्स और मास्क, इन सब का पूरा ध्यान रखें। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी हो, और फर्श जो है आपके स्कूल या कॉलेज की, उसको भी प्रॉपरली सोडियम हाइपोक्लोराइड के प्रॉपर घोल से आप डिसइंफेक्ट करें उस सरफेस को, और जो 70% अल्कोहल के साथ डिसइंफेक्टेंट है उसको भी आप अगर पॉसिबल है तो जरूर रखें। और पूरी की पूरी स्कूल बिल्डिंग को आप क्लीन और डिसइंफेक्ट रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहें। और कहीं भी कोई सरफेस, जैसे मीटिंग है, टेबल है, डेस्क है, चेयर है, दरवाजे, कुंडी, इन सब की भी क्लीनिंग की पूरी व्यवस्था करें। अपने स्कूल्स और कॉलेजेस के मीटिंग रूम्स, क्लासरूम्स में वेंटिलेशन को बढ़ाएं, खिड़कियां खुली रखें, एयर कंडीशंस को जहां तक हो सके कम इस्तेमाल करें, और पंखे के द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन जरूर रखें। और जगह जगह पर आप इनकरेजिंग पोस्टर्स लगा सकते हैं जो हैंड हाइजीन के ऊपर हो, रेस्पिरेटरी हाइजीन के ऊपर हो, और जो भी ट्रैश इकट्ठा हो, जो डस्टबिन्स हो, उनको डेली साफ कराएं और उसको सेफली डिस्पोज ऑफ कराएं, इसकी भी व्यवस्था हो। इसके बाद पेरेंट्स और केयर गिवर्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? उनकी भी भूमिका यही होनी चाहिए कि यदि आपका चाइल्ड बीमार है, आप बिल्कुल उसको स्कूल ना भेजें, और बच्चे को अच्छी हैबिट्स घर में जरूर सिखाएं। तो सभी प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमें स्कूल में लेने हैं, उसे हमें घर में भी लेना है, और इसके साथ साथ उसे कैसे खांसते समय, छींकते समय क्या सावधानी लेनी है, इसके बारे में भी अच्छे से बताना है। और बाहर की चीजों को खाने से बचना है, और टिफिन शेयरिंग जो बच्चे बहुत करते रहते हैं उससे भी उनको बचना है, इसका ध्यान रखना है। इसके साथ ही बच्चों को अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना सिखाना है। अगर उनको कहीं भी टीचर से जो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, या कोई व्यक्ति कहीं पर स्टिग्मेटाइज हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो बच्चे उसके बारे में बात करें, और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के थ्रू वो पेरेंट्स और केयर गिवर्स अपने बच्चों की इंफॉर्मेशन स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर करें। इसी तरह स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन के लिए भी चेकलिस्ट है, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उनको भी सभी प्रिवेंटिव मेजर्स का पालन करना चाहिए। अपने फेस को नहीं टच करना चाहिए, अपने ईटिंग मटेरियल को आपस में शेयर नहीं करना चाहिए, जहां तक संभव हो सोशल गैदरिंग्स या बाहर आने जाने से उनको परहेज करना चाहिए। तो ये सारी जो व्यवहार है बच्चों के, पेरेंट्स के, एडमिनिस्ट्रेटर्स के, वो हम सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। और वी हैव टू इंश्योर सेफ स्कूल ऑपरेशंस। और उसमें क्या करना है कि हमारा जो स्कूल की इमरजेंसी या कंटिजेंसी प्लान्स हैं वो अपडेटेड हों। बच्चों को पता होना चाहिए कि किस समय, किस सिचुएशन में उन्हें किस प्रकार का व्यवहार करना है। इवन डिजास्टर से रिलेटेड चीजें आपके बच्चों को बतानी चाहिए। कई जगह पे जैसे हमने देखा कि कोविड के साथ साथ पता चला बिहार में जैसे पिछले साल बहुत बाढ़ आई थी, झारखंड भी पास का ही एरिया है,
ऐसी सिचुएशंस में एक तो कोविड, ऊपर से फ्लड या लोकल हैजार्ड जो है, उनसे भी कैसे बचना है, इसके बारे में भी बच्चों को लगातार अपडेट करते रहें और अपने स्कूल और कॉलेज को डिसइंफेक्ट करके उसको लगातार सेफ जोन में रखने का प्रयास करें। और सोशल डिस्टेंसिंग को आपको जिस समय बच्चे आते हैं, आते जाते समय गेट पर या पार्किंग स्पेस में या क्लासरूम के आसपास उनको स्पेशली मॉनिटर करना है टीचर्स के माध्यम से कि वो भीड़ न लगाने पाए, और अपने अपने व्हीकल में जब जाएं तो वो मॉनिटर्ड हो। असेंबलीज को आप कैंसिल कर दें, गेम्स को जहां छूने की, टच करने की आवश्यकता है बिल्कुल ना खेलें, क्राउडेड कंडीशन जहां भी बन सके ऐसी चीजों को अवॉइड करें। और बच्चों को अगर बैठने के लिए आपको जब बुलाना है तो कम से कम 1 मिनट करके या हफ्ते में कुछ दिन आप उनको ऑनलाइन दीजिए, बाय रोटेशन आप क्लास में बुलाइए। कुछ इस तरीके की टीचिंग पर्सनल और ऑनलाइन दोनों को मिक्स करके आप इसको तैयार कर सकते हैं मेथोडोलॉजी। और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का प्रयोग हर एक को सिखाएं, टीचर्स को भी उनकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी, उनके पेरेंट्स को भी, कि किस तरह से वो टेक्नोलॉजी का उपयोग सेफली एक लिमिटेड अमाउंट में करें। तो चैलेंजेस एंड इश्यूज तो बहुत सारे आपने देखे हैं कि जैसे विशेष करके अगर प्राइमरी में कहा जाए तो वहां पे देखा कि जैसे मिड डे मील की वजह से न्यूट्रिशन का भी चैलेंज आ गया जो बच्चों को मिलता था अंडर प्रिविलेज्ड के लोगों से, या जो हमारे एल्डरली टीचर्स हैं टेक्नोलॉजी से बहुत फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए भी एक चैलेंज है कि नई नई टेक्नोलॉजी उनको सीखनी पड़ रही है। स्क्रीन के सामने बहुत सारा समय बिताना पड़ रहा है जिसकी वजह से उनपे आंखों पे प्रेशर पड़ रहा है, उनके मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। और इसके साथ साथ घर पे रह करके पढ़ने लिखने से, अधिक समय घर पे रहने से जेंडर बेस्ड वायलेंस, विशेष करके जो हमारी बच्चियां हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं या वुमेन टीचर्स हैं या और भी ऐसे स्टाफ हैं जो महिलाएं हैं, उन लोगों पे लगभग 50% इंक्रीज हो गया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि घर से बाहर निकल जाने पर उनके पास एक स्पेस होता था कि कुछ समय वो उस एब्यूज से बाहर रह सकते थे, पर घर पे 24 घंटे रहने से उनके ऊपर भी खतरा बढ़ा है। तो इसके लिए भी हमें कम्युनिटी हेल्प ग्रुप्स बना करके कुछ आपस में एक दूसरे मैकेनिज्म को ऐसा रखें कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे का हालचाल ले सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें। आपने देखा है माइग्रेशन बहुत लार्ज स्केल पे हुआ है, तो जो माइग्रेटरी लोग हैं उनके बच्चे अब कैसे पढ़ेंगे, वापस वो नहीं जा रहे हैं, नए स्कूल में नाम लिखाना, नई जगह पे नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है और घर पे खाने का प्रेशर है, अगर कोई बीमार हो गया वो भी खर्चा है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, लाइवलीहुड इश्यूज हैं जिसकी वजह से बच्चों की एजुकेशन पे प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ साथ मिडिल सेक्टर के लोगों की भी नौकरियों पे खतरा हुआ है। प्राइवेट कंपनियों में जो लोग काम कर रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, मान लीजिए जो मॉल में जिनकी दुकानें थी या जो पिक्चर हॉल या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या ट्रेवल एजेंसी या फिर डॉक्टर्स के यहाँ भी लोग कम जा रहे हैं, सबकी इनकम पे असर पड़ा है। तो बच्चों की फीस कैसे वो प्रोवाइड कर पाएंगे, ये भी मुश्किल है। उसके साथ ही ये भी इशू आ रहा है कि जब बच्चे स्कूल में पूरा टाइम पढ़ेंगे नहीं तो पेरेंट्स फीस भी नहीं देना चाह रहे हैं पूरी, वो कह रहे हैं फीस कम करिए। अब फीस कम कर देंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर्स और प्रिंसिपल्स के सामने अगला क्वेश्चन आता है, वो सैलरी कैसे देंगे, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कैसे करेंगे, वो इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे हैंडल करेंगे। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर हमें वन बाय वन धीरे धीरे करके हमें इवॉल्व करना होगा, आपस में डिस्कस करके। और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्लानिंग्स आ रही हैं उन प्लानिंग्स का लाभ हम कैसे अपने रोल में ले सकते हैं, ये भी हमें ध्यान देना है कि अगर हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है तो बच्चों से कितने % हम फीस चार्ज कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे लैब के खर्चे कम हो रहे हैं या हमारे यहाँ क्लासरूम में बिजली का बिल कम आ रहा है या एसी नहीं हम चला रहे हैं, उसके खर्चे बच रहे हैं, तो उस पैसे को हम कैसे एजुकेशन के दूसरे जो ऑनलाइन मोड हैं उसमें उपयोग में ला सकते हैं। जो बच्चे हमारे अंडर प्रिविलेज्ड क्लास से आते हैं, क्या हम उनको किसी तरह से स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें आपस में डिस्कस करके और मिलजुल करके देखना होगा। अभी जैसे यूजीसी की गाइडलाइन आई
कि एग्जामिनेशंस आर इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स, पर बहुत सारे बच्चे डर के और एंजाइटी की वजह से पेरेंट्स और बच्चे और टीचर भी कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में भी हमें कोई वाया मीडिया निकालना होगा कि इम्तिहान अगर होते भी हैं तो क्या उसको हमें मोड चेंज करने की जरूरत है, किस प्रकार से होंगे, इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे होंगे या ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होंगे। तो ये सब इश्यूज भी अभी हमें सॉर्ट आउट करने हैं। और मेंटल इश्यू तो आपने ये देखा ही है कि बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे पोजीशन वाले लोग उसको झेलने में असमर्थ हैं। तो हमें अपने बच्चों को इंटरनली किसी तरह से वीक नहीं होने देना है, और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हमारे टीचर्स को भी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारे स्टाफ को भी लगातार साइको सोशल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो हमें ध्यान रखना है कि हर एक की जरूरत अलग अलग होती है। आप देख रहे हैं ना कि सारस और लोमड़ी, फॉक्स एंड द क्रेन, they have different capabilities, but if we offer them the same solution, they will not be benefited. So we have to customize our solutions for each and everyone in a different way. There are certain things common, but there are certain things which are specific. So we have to keep in mind all the diversities, the immunity level of the people, the lifestyle of the people, gender, ethnicity, sex, age, and if some teacher is pregnant, or their economic condition is bad, or their education level, their urban or rural type of living. So there are so many variables. So if we want each and everyone to be taken care of in a best possible way, we have to have a customized plan for them as far as possible. So there will be two components in the management and methodology. One is constant for everybody, and the other is variable as per need of the people. So the fixed component, for example, infrastructure is same, salary and fees and all those things are same. But the kind of counseling, the kind of teaching methodology, the kind of support you need, that has to be custom based. So that will help a lot. And we see, like, I'm a statistician, so I know people are more worried about the percentages, the numbers. How many students came to the class, how many passed, what is the percentage, and how they performed. And on the basis of that, many government plans are made, many laws and policies are made, the infrastructures are revised. But the thing which is unobserved, that is at times most important, like the qualitative data, gender issues, mental health, social and cultural aspects, behavioral issues. These are some of many very important issues which affect us to the core of our heart, and they are hardly taken care of. So we have to take care of the numbers and the feelings and emotions at the same times. We have not to put pressure for achieving a particular level in learning, but we have to make sure that everybody is feeling like good, healthy, happy, wanted, and not discriminated. So if you could maintain that kind of environment for your students, for your teachers, for your all the stakeholders, then I think that will be the best thing. So we all know students are the backbone and future of any society and nation. So let us care for them in best possible way. Let us pledge zero tolerance towards discrimination. So whether they are girls or boys, poor or rich, abled or differently abled, everybody must get an equal chance to learn, to grow, to be educated. And we must utilize this opportunity to ensure the return to a better normal. So let us try to make a better society. Because of the COVID-19, we have realized there are many important things. For example, the nature is important for us. That has become less polluted now. We can see
the less polluted rivers, the less polluted air level. So the things are happening which are in a better way when the pandemic was not there. So let us maintain them, let us sustain them. And people have realized that everybody's well-being is important for everybody. So we should be more empathetic, more sensitive, and more concerned with everyone's well-being. So if we could ensure that, so I think that will be the best lesson and best possible thing that this pandemic could have brought us, despite of all the adversities which it has brought to us. So with this, I would like to stop my presentation, and now I am open for the discussion. So it is for the organizers to please. Yeah, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your wonderful lecture. It was really very simply you have explained each and everything, and it was very enlightening for us, ma'am. Thank you so much. Now I would like to invite the teachers, faculty members of KCC and other to please come up and unmute yourself. And if you have any query or any question, they can just put in, and ma'am is here to answer. Please unmute yourself. Priya says a chat code, wonderful session, ma'am. Priya says a chat code, thank you, ma'am. Ada Ali 1995 says a chat code, thank you, ma'am. Buzzard Slam says a chat code, thank you, ma'am. I'm not able to listen. Please moderate. The anchor or organizer, they are requested to please moderate. I'm not able to listen. Can you hear me, ma'am? Yes, you are audible properly. Yes. Okay. So if you have any question, all the any of the teacher or the student, they can unmute yourself and ask your question. Right? Or the best thing would be if they can put it in the chat box and you can read it out to me. Yeah. This can also be happen. अगर आप चाहे तो आप अपना जो है क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर अनम्यूट करके बोले, जैसा चाहे. मैम जब तक वो लोग डिस्कस कर सकते हैं. yes. तो मैम हम जब तक मुझे पूछना था मैम आपसे क्वेश्चन, should I go ahead and ask you? Sure. Ma'am, मेरा क्वेश्चन था, you are talking about differently able and disabled students. आज के टाइम में when the entire focus of the administration and all the wings of the government and academics, everyone is on like COVID-19. They are counting every day. सारा focus उधर है ना, each and everything is focused upon that. So at this particular time, those students who comes from the marginalized group, I mean, they have not been given the basic facilities. Like, for example, if they have laptop, they have not the software to run that particular app called Google or, Zoom or the Microsoft Team app and so forth. So how to come up, how to solve those students, how to reach those unreached people, and how to solve those students' problem, like for example, students who are blind, students who are hearily impaired, any kind of impairment the student is having, their needs are different. But now, they are absolutely, they are out of the picture right now. Nobody is there for helping them out for the educational session or the class sessions that are going on. How to solve those problems, ma'am? Yeah. So there could not be a ready-made solution to your problem, because the problem is very genuine, and this I identified in my first few slides only, that one of the students committed suicide just because she could not attend her online classes. So the question is very genuine, but we have to think of some innovative ways. For example, there had been some kind of arrangement with the Doordarshan. So they were also having some community lecture kind of thing, or some audio or video kind of installation in a particular Gram Panchayat. And the people can come up to that place and then they can learn together with the help of Gram Pradhan or the ward corporator, whosoever, whether it is urban area or rural area, depending upon that. So we have to think about some pre-recorded lectures
so they can be sent, and the facility can be built up in a nearby area where the students are residing of that particular type. So that is how I think we have to innovate, we have to think, and we don't have any ready-made answer to these questions. Yeah. And as I said, like if school and colleges, they are saving some money because of their less number of days of attendance of students, like reduced electricity bill or the lab expenses. So can they support their students with that saving, so that they can buy them some kind of laptop or some kind of a smartphone? This is only an idea. I don't have any ready-made solution. But of course, the government is also coming up with different plans depending upon the different needs of different states, different districts. So, and differently abled also. If somebody is not able to see, then they have to have some audio lectures. If they are not able to listen to even, then they have to have some other kind of methodology. So you need some kind of experts who are experts to train the students of that particular differently abled category. So they will be able to help you in a better way to tell how you can go ahead. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. So you're saying that there should be a kind of a hotspot which should be created, in the various places for those localities. In the localities, yes. In the localities. Thank you so much. Yeah, I would like to invite questions from other teachers. If there is, then please come up or write it on the chat box and mute yourself. Or students. The chat box is full of thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I mean, your lecture was very important and very nice. It was exactly correct. I mean, I will be happy to listen to all your colleagues and learn something from them. Yeah, definitely. I would like to invite Professor Parveen, ma'am. Parveen, ma'am, please, ma'am, unmute कीजिए and please कुछ बोलिए. I don't know if she is hearing or not. Dr. Sandhya Sinha, ma'am. Yeah. Dr. Sandhya Sinha, yes, ma'am. Shiva. Yeah, ma'am. Just excellent, Shiva. Ma'am. Ma'am, just excellent, ma'am. No, but I would like to learn something from you. So if you just bring out something new, then I will be benefited by that. Okay, ma'am, I want to ask one thing. Yeah. Ma'am, can you hear me? Yes, I can hear you. Ma'am, he is Professor Parveen, the most senior professor of our college, ma'am. She wanted to ask something. Professor Parveen, ma'am, please go ahead. Yes. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम एग्जामिनेशन की है, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अभी कोई मटेरियल नहीं है, जैसे लैपटॉप या ये सब चीजें जो शिवान ने पूछा, तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन वो कैसे देंगे? तो क्या इस ईयर को 0 ईयर मानना चाहिए? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे, सक्सेसफुली वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे और पास नहीं कर पाएंगे, और जो पास भी कर रहे हैं, अगर हम ऑनलाइन एग्जाम्स लेते हैं तो उसमें बच्चे ज्यादातर नकल करके ही पास हो रहे हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? जी, आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है और हम अपना एक्सपीरियंस जो हमारी यूनिवर्सिटी ने प्लान किया है वो शेयर कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि जितना हम लोग इनको इन क्लासेस पढ़ा चुके थे, तो वो हमारा फोकस एरिया होना चाहिए, और जो हमने ऑनलाइन मटेरियल उनको दिया था कुछ यूनिट्स में, वो अगर उनको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया है, तो पहले हमारा जो एग्जामिनेशन का पैटर्न था वो ये था कि हर यूनिट में से उन्हें क्वेश्चंस चूज करने होते थे। तो हमने क्या किया कि हमने सारी यूनिट्स को मर्ज कर दिया और ये प्लान किया है कि हम उनको पहले पढ़ाया जा चुका था, अगर उसी यूनिट से वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहें तो दे कैन डू इट।
So they have been given freedom to choose from whatever was taught to them during the personal classes, and we are also trying to focus on giving them more option in the compulsory question as well. So initially we used to have one compulsory question with 10 parts to attempt, but now we have given them choice to attempt only 5 parts of that question. Moreover, you can think of reducing the syllabus as well. So if you think this is difficult topic, this is hard to understand through online education, many students might have missed that, so you can drop that by doing a meeting, and that syllabus may be reduced. So those are the things which you can opt for in current situation. And moreover, the competitive examination have been happening through online procedure. So we will not say that it is entirely impossible to conduct online examination, because this is an special year. So this special year may have special provisions as well. So you can go for 50% online question assessment, and then 50% on the basis of internal assessment. Then if you want to have when the things are normal, you can give them option again to reappear in the examination and improve their scores if they wish. So it can be something of that type. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आई होप प्रवीण मैम आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। सुचिता मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। सुचिता थैंक यू मैडम, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। जी जी। Christian Tagaki says, Jack Cole, nice, informative, very well-delivered lecture. PR Miss are required to be complimented. Thanks to the organizers for organizing this webinar. इस प्रॉब्लम से Sample survey division. हम ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेकर सॉल्व कर सकते हैं। हेलो, excuse me, others can please mute themselves, because then your voice gets interrupted. Others can mute other than a speaker, please. Yeah, thank you. Yes, please go ahead, Dr. Suchita. हाँ मैडम, हम जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। 50% हम ऑनलाइन क्लास लें, 50% ऑफलाइन क्लास लें, और ये हम मैनेज कर सकते हैं, और ये कोप अप भी हो सकता है इस तरह से। किंतु हम जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जिन्हें हम आज तक मना करते आ रहे कि आप मोबाइल को टच मत करिए, मोबाइल पूरे टाइम आप वो हैंडल मत करिए, आज उनके हाथों में वो गैजेट हमने डाल दिया है, और उसका उन्हीं की बददुआ लगी है लगता है मैडम, उन्हीं की बददुआ लगी है। हाँ, और उनके हाथ में ये जो मिसयूज हो रहा है, और जिसमें हम लोग उस समय कहते थे कि आपके आंखों पे इसका असर पड़ेगा और आप इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, और उनको हमने वो मोबाइल थमा दिया और दिन भर वो मोबाइल से वो कर रहे हैं। क्या ये बहुत अच्छा जो साइन है, या क्या इस पर और हम काम कर सकते हैं? जी, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है आपका, और ये हम सभी लोग फेस कर रहे थे कि जिस चीज को हम रिड्यूस करना चाह रहे थे उस चीज को हमने इंक्रीज कर दिया। तो इसको हम थोड़ा इस तरह से देखेंगे कि हमने इंक्रीज नहीं किया, हम उसको शिफ्ट कर दें, स्विच कर दें। यानी जिस समय हमारे ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहे थे उस समय भी ये स्टूडेंट्स अच्छा खासा टाइम इंटरनेट पे दे रहे थे, जिस पर बहुत सारी स्टडीज भी हैं, पर वो टाइम उनका जा रहा था सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब क्लिपिंग देखने में, नेटफ्लिक्स पे। तो जो एंटरटेनमेंट और बाकी चीजों में जा रहा था, हमें कोशिश करनी होगी कि अब वही टाइम, उससे बहुत ज्यादा नहीं, वही टाइम वो स्विच कर जाए ऑनलाइन की तरफ, जब तक ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं आती है तब तक ही। और पर्सनल टीचिंग का सब्स्टिट्यूट तो ऑनलाइन टीचिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि पर्सनालिटी के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, सोशलाइजेशन की स्किल्स के लिए, टीम स्पिरिट के लिए बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में व्यक्तिगत रूप से जाने से मिलती हैं, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से नहीं मिल सकती। इसलिए हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि बच्चों का
टाइम अब एक्स्ट्रा जो सोशल मीडिया और बाकी जगहों से कम किया जा सकता है उसको हम कम करें। बुरा बच्चों को इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले जो वो टाइम इन्वेस्ट करते थे वो इंटरटेनिंग था, अब ये पढ़ाई है और पढ़ाई तो किसी को भी नहीं अच्छी लगती वैसे भी, और अब ऑनलाइन भी पढ़ाई करनी पड़े तो वो और उनके लिए मुश्किल है। तो टाइम स्क्रीन का रिड्यूस करें बाय लिमिटिंग द सोशल एंड अदर टाइमिंग्स, और कम करें। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेरी ट्रू, पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती। छोटे बच्चों को खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। सही बात है मैम। एक क्वेश्चन है। हाँ सुचिता मैम, आप प्लीज बोलिए ना जी। ये जो ऑनलाइन क्लास है, क्लास कम चैट ज्यादा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए और कनेक्टिविटी की वजह से हम लोग वीडियो ऑफ करा देते हैं और कई बार हमें पता भी नहीं होता कि वो बंदा सो रहा है। अब 94-98 लोग हमारे इस स्क्रीन पे हैं, उसमें से कितने जग रहे हैं कितने सो रहे हैं, वी हार्डली नो, बट देयर इज नो चॉइस व्हाट टू डू। पर मैडम हम लोग ने अभी क्लासरूम का एक गूगल क्लासरूम हमने ज्वाइन किया है और उसमें सीख रहे हैं कि हाउ टू, मतलब हम कैसे देखें कि बच्चे अटेंटिव है कि नहीं। हाँ, ये भी हम लोग को अब सीखा है। वो टेक्नोलॉजी है, देखिए वो डाल में पात करना पड़ेगा। बच्चे हमेशा इनसे स्मार्ट रहेंगे टेक्नोलॉजी में, पर हमें भी अब स्मार्ट होना पड़ेगा। अब ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो आपने कितनी देर लेक्चर को अटेंड किया इसका कैलकुलेशन करके आपको दे देंगे। और अभी कई वेबिनार्स ऐसे भी हुए हैं जहां पर स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट तभी मिला है जब उन्होंने 80% से ज्यादा अटेंटिवली पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी है कि आप उसके सामने कितनी देर थे, कब तक आपने ऑपरेट किया, कितनी देर आपने क्लास अटेंड की, वो सब कुछ मॉनिटर हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और ऑलरेडी आ गए हैं ऐसे। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स की तरफ से कि क्या इस साल का ये जो सीबीएसई यूजीसी नेट एग्जाम और सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इस सेशन का क्या ये 0 हो गया है क्योंकि डेट सब खत्म हो गई हैं, सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, क्या ये 0 सेशन में जा रहा है? इसके बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मुझसे तो नहीं मिल पाएगी, मुझे भी पता करना पड़ेगा। ओके मैम। और किसके पास कोई क्वेश्चन है? I think now we should conclude. Your microphone on. Uploading JAWS. हेलो। या हेलो मैम, अब इसको कंक्लूड करा जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, कंक्लूड करिए आप लोग जी। Yeah, hello. Thank you everyone for this wonderful. Thank you Geeta ma'am for your wonderful lecture. This was indeed a very interesting, very easy, very simple and very enriching lecture. And you have showed all the do's and don'ts of the unlock world which will be witnessed by us very soon. जहाँ सारे बच्चे कॉलेज जब आना शुरू करेंगे या स्कूल आना शुरू करेंगे, so how we should cope with them? What are the supervision strategies that we should have in our mind? Thank you, ma'am, for telling us in precisely the best possible way. Thank you so much. Now, I would like to invite. I would like to add something here. Yeah, yes, sure, ma'am. Whenever you reopen, please celebrate in a very big way. Big way means not in terms of like big crowd, but let the students and teachers and everybody feel special that now the things are returning to normal. So it will be an opportunity for them to cheer up. So make sure that students are always in a good mood, always in a good spirit, always in a festivity kind of environment. They should start their new session.
Definitely, ma'am. Definitely, it will be a new life for us. A new beginning should also start. Should always be started with a good celebration, not collectively, but with a distance. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Now, I would like to invite our head, who is the thinker behind all these webinars, web lectures, and web concerts, who always supports us in all the best possible way, Dr. Suchita Bhuyan, ma'am, to please come and express the vote of thanks for our beloved esteemed speakers of today, Dr. Geeta Mishra, ma'am. सॉरी सर, ये शीला मिश्रा मैडम, डॉक्टर शीला मिश्रा. Sorry, I am. Thank you. It's okay. It's okay. ये मैं पहले कह दूं कि सभी जितने भी हैं म्यूट कर ले. समीउल्लाह सर. जी मैडम. म्यूट कर ले. यदि कुछ बोलना है तो पहले बोलना है आपको. नहीं मैडम, समीउल्लाह सर कुछ बोलना है. अच्छा, म्यूट कर लीजिए. अपना म्यूट करिए, मोबाइल म्यूट करिए. जी जी. ये शीला मिश्रा मैडम से हम बताना चाहते हैं. मैडम, हेलो मैडम. मैडम हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसी बीएड कॉलेज से, इसी करीम सिटी बीएड कॉलेज से, बीएड से हमने यहाँ से बीएड किया था. और जो सुचिता मैडम है, परवीन मैडम है, संध्या मैडम है, ये सभी हमारे ऑलरेडी टीचर रह चुकी हैं. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो उन्होंने एक अच्छे स्टूडेंट को एक टीचर के रूप में तैयार किया है. उन्हें भी बहुत बहुत बधाई. जी मैडम, थैंक यू. सुचिता मैम, प्लीज. हाँ बोलिए सुचिता. हाँ. समीउल्लाह सर म्यूट करिए. Respected our Karim City Principal Sir, Dr. Mohammad Riaz Sir, our guest speaker, Dr. Sheila Mishra Madam, Organizing Secretary, Professor Sibanur Rahman Sir, Co-Organizing Secretary, Professor Rituraj Madam, all faculty members and all listeners. So good afternoon. आज का जो टॉपिक था सही मायने में एक बर्निंग टॉपिक है. कोविड-19 challenges and methodologies for educators. स्टूडेंट नहीं, पेरेंट नहीं, आज एजुकेटर्स की बड़ी चिंता है, बड़ी परेशान में है. आज जो फिजिकली क्लास लेते थे और एक फॉर्मिंग, जो हम कह सकते हैं एक बना बनाया पैटर्न था हमारे पास, और उस पैटर्न पे हम क्लास लेते थे, हमें कोई परेशानी नहीं थी. पर आज कोविड-19 ऐसा आया जो पहले जहां पर हमें ऑनलाइन क्लास की बातें हमारे इंस्टीट्यूट में पहले बोला गया था कि नैक की टीम आएंगी और ऑनलाइन क्लासेस किया जाए, तब हमने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया. हमारे सिबानुर रहमान सर जो हैं, इन्होंने भी मुझे बहुत बार सजेस्ट किया, सर सभी एक एक वीडियो लेक्चर बनाएं और हम अपना क्लासेस दें, पर हम तब उस पर ज्यादा फोकस नहीं डाल सके. पर आज ये कोविड-19 ऐसा एक दौर गुजरा जिसमें सभी एजुकेटर्स, सभी शिक्षक को आज मजबूर होना पड़ा कि ऑनलाइन क्लास के लिए, चाहे वो गूगल क्लासरूम हो, चाहे वो गूगल मीट हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप के द्वारा हो,
चाहे वह वीडियो लेक्चर बनाए, किस तरह हम एक क्लास स्टूडेंट का क्लास लेने के बाद हमारे सामने में एक और प्रश्न उठता है कि केवल हम जब क्लास लेते हैं, वीडियो लेक्चर लेते हैं, तब हमें समझ में आ रहा था कि हम जैसे दीवारों को क्लास ले रहे हैं और स्टूडेंट के साथ में जो हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं या हमारी जो परेशानी जो आ रही है वो नहीं हो पा रहा। तो एजुकेटर के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि इनको इवैल्यूएशन कैसा किया जाए, असाइनमेंट कैसे दिया जाए और किस तरह से किया जाए। पर कोई ऐसा समय नहीं है जहां हम अपने आप को हार महसूस कर लें। तब तो हम तो शिक्षक ही हैं, तो शिक्षक कैसे हार मान ले। तो सभी ने इस दौर पर कुछ नया सीखने की कोशिश किया और हर रोज हर टीचर अपने आप को इस नए जमाने के साथ अप टू डेट करने की कोशिश किया। हर टीचर के सामने उसका स्टूडेंट ही उसको गाइडलाइन कर रहा था, कि स्टूडेंट ही बताता था कि मैडम आप इस तरह से कर लीजिए। सही मायने में आज हम सीखने के इस दौर पे हम स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखे। जैसे मैडम ने पहले ही एक वाक्य में कहा कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर हम कुछ बताएंगे, उससे ज्यादा हम कुछ आपसे सीखेंगे। सही, आप एक दूसरे से जब हम डिस्कशन करते हैं, कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकल के आता है। और सही मायने में शीला मिश्रा मैडम, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे और ये शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें कुछ रियल फैक्ट के बारे में बताया। हम कह सकते हैं आपसे, आपके बारे में, कि भगवान ने अगर, या भगवान नहीं कह सकते, या यदि कोविड-19 आया ना होता तो एक एजुकेटर्स को दूसरे एजुकेटर से हमको मिलाया ना होता। आज आप ऐसे हस्ती हैं जिन्हें मिलने के लिए हमें आपके शायद लाइन लगाना होता, या हम आपसे हमें मिलने में परेशानी होती। एजुकेटर्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और एक दूसरे को इस ऑनलाइन के माध्यम से, या वेब लेक्चर हो या वेबिनार के माध्यम से आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। तो कैसे करूं शुक्रिया उस भगवान का, कैसे करूं शुक्रिया मैं उस भगवान का। तो जिंदगी हो जाती बेजान अगर मैंने तेरे जैसा एक एजुकेटर, स्पीकर पाया न होता। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद मैडम। मैं आपने करीम सिटी कॉलेज की ओर से, करीम सिटी कॉलेज के परिवार की ओर से, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की ओर से आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि हमारे एक आपके हम लोग ने एक आगाह किया या आवाज दी आपको। आपने हमारे लिए इतना बड़ा एक समय दिया, इतना कीमती समय। हम देख रहे थे कि आप बहुत बिजी हैं, पर उसमें भी आपने अपना कीमती समय निकाला। धन्यवाद फिर से। और मैं अपने प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रियाज सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे बैकबोन में सर हमेशा साथ में रहते हैं, कि हमारे लिए जो भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए हमें हमेशा पीछे हमारे बैकबोन की तरह रहते हैं। थैंक यू रियाज सर। और हमारी जो ये टीम मेंबर्स है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सिवानुर रहमान सर, को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऋतुराज मैडम, इन्होंने तो केवल पैजामा पहनाया, पर इसका सूत्रधार जो हम कहेंगे समीउल्लाह सर जो हैं, जिन्होंने आपसे हमें मिलाया, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी और समीउल्लाह सर का। और मैं कहूंगी कि आप एक दिल की बात कही मैडम, और सही माने में हमने जो आपने कहा कि एक जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अपना मदर टंग जितना अच्छा होता है, आप इंग्लिश में बोलिए, पर आप हिंदी में जब आप बोल रही थी तो आप अपनी फीलिंग्स बता रही थी। तो सही आपका मैं धन्यवाद दूंगी। और सही मैम। इसी के साथ
इसी के साथ मेरी पूरी टीम, जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की टीम है, मेरे परिवार जो जिसमें सभी और जो रिपीटर हैं और या हमारे जो स्टाफ है, वो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इसी के साथ मैं भी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी वेबिनार को आयोजित कराना कितनी टफ टास्क है। बहुत सारा टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल कम्युनिकेशन लगातार बढ़ते हैं और इसके साथ साथ जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विशेष करके प्रोफेसर कृष्ण त्यागी जी को मैं विशेष नमस्कार करना चाहती हूँ, क्योंकि सर आपकी प्रेजेंस हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाती है और आपके कमेंट्स भी बहुत मुझको अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह जी भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आपके कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स, कलीग्स और विशेष करके सैमुअल्ला जी को भी मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ऐसा मौका दिया कि आप सब लोगों से घर बैठ करके हम इंटरेक्ट कर सके और अपनी फीलिंग शेयर करके आप लोगों से भी बहुत कुछ सीख सके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड होपफुली when the things will be back to normal, I will be able to get a cup of tea also after the webinar, actually not virtually. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. मैडम, Thank you so much. मैडम मैं एक बात बोलना चाहूंगी, इन फ्यूचर में भी हो सके मैं आप लोग से जरूर आप कांटेक्ट करेंगे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे भी। थैंक यू सो मच मैम। पहले आपसे वादा लेना चाहेंगे मैम कि आप जब भी हम बुलाएं आप प्लीज दोबारा जरूर अब तशरीफ लेके आइए और हमें जो है मैडम हमें इज्जत बख्शिए। आई रियली थैंक यू फॉर coming to us and delivering such a beautiful lecture. जब आपने 4 बजे का टाइम दिया तभी हमें समझ में आ गया था कि we are meeting a very busy personality। और मैम आप जो है अपने इतने busy schedule से भी जो है थोड़ा टाइम हमारे लिए निकाली। It is an immense pleasure for us and I thank my co-organizing secretary Rituraj ma'am and all the team members, Priyanka ma'am and Amika ma'am and every teacher and all the students. Thank you so much. Thank you everyone. Let's meet in the next web lecture. Thank you Sheila Mishra ma'am. I hope this is the time I've spoken right name of yours. Thank you very much. Thank you madam. नमस्कार। Thank you ma'am. शिबान सर आप हैं इसमें भी? हाँ मैडम, रितु मैडम बोलिए। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, बोलूं? हाँ प्लीज बोलिए प्लीज। हाँ, इस वेबिनार के सक्सेसफुल होने के लिए मैं सब